physics class. Today we are going to study the topic path length and displacement. That is the topic path length and displacement. So first of all we should know what is path length and what is displacement. Path length can also be called as distance. Path length can also be called as distance. So distance and displacement you can also call it. Suppose a body starts from A, moves to B, and then from B to C, moves from A to B, then moves from B to C. So what is the meaning of distance? What is the path followed by the body? Path followed by the body is A to B, then B to C. So what is the path followed? That is A to B, then B to C. Length of the path followed. Length of the path followed by the object is called distance of the moving body. So it means if this is 3 meter, this is also 3 meter. AB is 3 meter, BC is also 3 meter. So what is the distance covered by the body? That is 3 plus 3, that is 6 meter. So what is distance? Distance is length of actual path. Length of actual path followed by moving body. It means एक moving body जो path follow कर रही है उसकी जो length होगी that is called its distance. So distance will be AB is 3 meter plus BC is also 3 meter. It becomes 6 meter. So distance is 6 meter of the body in this case. So what is distance or path length? Length of actual path covered by the moving body is called distance or displacement. Okay? Distance है displacement अब हम करने जा रहे हैं. So what is displacement? Displacement is shortest or straight path from initial to final point. इनिशियल का मतलब जहाँ से बॉडी ने चलना स्टार्ट किया. बॉडी ने चलना स्टार्ट किया ए से, तो इनिशियल से फाइनल तक जाने का जो सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट जाना. तो सबसे छोटा पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो ये बनेगा इसका शॉर्टेस्ट पाथ. आई एम रिप्रेजेंटिंग इट एज डॉटेड. सो दिस विल बी द स्ट्रेट और शॉर्टेस्ट पाथ इज गोइंग फ्रॉम ए टू सी. इट मीन्स इनिशियल जहाँ से बॉडी ने चलना स्टार्ट किया था पाथ के दौरान और जहाँ पे बॉडी जाके रुकी सी पे फाइनल पॉइंट. तो इनिशियल से फाइनल तक जाने का जो स्ट्रेट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. दैट इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट. सो AC is the displacement. AC is displacement. A to B, B to C, that was distance. Now AC is displacement. Okay, I hope you all understood the concept. So if this value is given also 3 meter, so what is the displacement? That is also 3 meter. Distance was 6 meter and displacement is 3 meter now. Displacement is the shortest path from initial to final position. Distance is length of actual path followed by the moving body, that is called distance. So you can say path length. What are the differences between distance और displacement? Similarities हो चाहे distances हो, दोनों ही हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं. Similarities या distances. डेफिनेशन हमने कर ली. फर्स्ट पॉइंट दोनों की डेफिनेशन आएगी. लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज डिस्टेंस and shortest path from initial to final, that is called displacement.
SI यूनिट इसकी भी मीटर ही है और SI यूनिट इसकी भी मीटर ही है. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ द टर्म्स आर मेजर्ड इन मीटर SI यूनिट. थर्ड इज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव नॉर जीरो. किसी मूविंग बॉडी का कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता और जीरो नहीं हो सकता, ऑलवेज ये पॉजिटिव ही होता है. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और जीरो. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. अब जीरो कब होगी डिस्प्लेसमेंट, पहले तो वो देखते हैं. अगर इसी मोशन में अगर बॉडी ए से बी गई, बी से सी जाती और सी से वापस ए पे आती, इट मींस बॉडी ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ए बी, बी से सी और सी से वापस ए. व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन, दैट इज ए. व्हाट इज द फाइनल पोजीशन, दैट इज आल्सो ए. इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ही सेम है. तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट, दोनों अगर सेम होंगे, दोनों के बीच में गैप जीरो होगा. सो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो इन द केस where initial and final positions are same. Where initial and final positions are same, their displacement will be zero. When the displacement will be positive, if this is the initial point suppose and this is the final point. Final point is in the right side of distance. Initial point, that is positive displacement. If final point is to the left side of the initial position, then displacement is negative. So displacement can be positive, negative or zero, but distance is always positive, never negative or never zero. Distance may be equal to displacement or greater than. डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या इक्वल होगा. पहले तो हम समझते हैं इक्वल कब होगा. अगर ये बॉडी सिर्फ ए से बी जा रही होती, मोशन ही कहाँ से कहाँ होता, ए से बी, दैट इज 3 मीटर. ए इनिशियल पॉइंट, बी फाइनल पॉइंट, स्ट्रेट पाथ है. इट मींस व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 3 मीटर, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल. एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. व्हाट इज इनिशियल पॉइंट, दैट इज ए. व्हाट इज फाइनल पॉइंट, दैट इज बी. सो व्हाट इज द गैप बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज 3 मीटर. So if a body moves along a straight line, then distance is equal to displacement. And if a body is not moving a straight line, it has taken a turn. अगर टर्न ले चुकी है तो हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा. इसमें आप ये देख ही चुके हो, 6 मीटर डिस्टेंस आया था, डिस्प्लेसमेंट आई थी 3 मीटर. तो डिस्टेंस या तो बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से या इक्वल हो सकता है, कम नहीं होगा कभी भी. एंड नेक्स्ट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. Displacement can be equal or shorter than the distance. Equal कब होगा, when the bodies move along a straight line. और otherwise displacement हमेशा less होता है डिस्टेंस से. तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती, हमेशा या तो कम होगी डिस्प्लेसमेंट या इक्वल होगी. इक्वल कब होगी, when the body is moving along a straight line. So these are the some important points of distance and displacement. Now how can we calculate the displacement if we are given with the coordinates of the body while in motion. Suppose a body at A, okay, so this is having the coordinates 0 0 0, it means this is the origin. Body has moved to B, यही केस हमने किया था. इसके coordinates हैं 2 0 0 and again it moves to C. So इसके coordinates हैं मान लीजिए 1 3 0. So what is the initial position, that is A. What is the final position, that is C. So what is the displacement, that is AC. Displacement क्या बनेगी, AC. तो अगर हमने AC निकालना है, it means इसको मान लो हमने X फाइनल लिख लिया और ये पोजीशन है X इनिशियल. पोजीशन को हम X से लिखेंगे. तो हमने करना क्या, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है और कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, सो वी विल सब्ट्रैक्ट द कोऑर्डिनेट फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल. मतलब फाइनल के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट. सो व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट, फाइनल के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 3 0, इसके x में से इसका x का कोऑर्डिनेट माइनस होगा. सो 1 में से 0 माइनस करो, दैट इज 1 - 0.
कॉमा इसके y में से y कोऑर्डिनेट 3 माइनस 0, इसके z में से z कोऑर्डिनेट 0 माइनस 0, सो इट विल बिकम 1 3 0. So 1 3 0 are the coordinates of the displacement as well. अगर ये ओरिजिन ना होता, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते. मान लो ये है 1 0 0, तो यहाँ 1 माइनस 1 आता है, एक्स में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होता है. तो अगर हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन ये होता है कि फाइनल पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो, सो यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट. यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट. तो अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, हाउ कैन वी गेट द डिस्प्लेसमेंट? So now our next topic is speed. What is our next topic for today? That is speed. So what is the meaning of speed? So meaning of speed is distance covered by moving body per unit time. पर यूनिट टाइम में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड इट स्पीड. सो स्पीड हियर मींस इफ वी आर टेकिंग द टाइम इन सेकंड्स, सो इट मींस 1 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, दैट इज इट स्पीड. अगर हम टाइम ले रहे हैं मिनट्स में, तो 1 मिनट में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, दैट इज कॉल्ड इट्स स्पीड. अगर हम टाइम ले लें आवर्स में, तो इट मींस अगर 1 आवर में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, दैट इज कॉल्ड इट्स स्पीड. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड? दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम. पर सेकंड में, पर मिनट में या पर आवर में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, दैट इज कॉल्ड इट्स स्पीड. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अपॉन टाइम टेकन फॉर कवर दैट डिस्टेंस. उस डिस्टेंस को कवर करने में बॉडी ने कितना टाइम लिया, तो डिस्टेंस कितना है और उसको कवर करने में बॉडी ने कितना टाइम लिया, मूविंग बॉडी ने, दोनों का जो रेशियो है, दैट इज कॉल्ड इट्स स्पीड. सो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्पीड. जनरली स्पीड इज रिप्रेजेंटेड एज v, distance is represented by the symbol s, and time is represented by the symbol t. So what is the formula to calculate the speed? That is v equals s upon t. v equals s upon t. v stands for speed, s for distance, and t for time. So v equals s by t. It means speed is equal to distance upon time. जो SI यूनिट है स्पीड की, स्पीड कैसे यूनिट है, मीटर पर सेकंड. अगर स्पीड कैसे यूनिट लेनी है, तो डिस्टेंस की कैसा यूनिट और टाइम की कैसा यूनिट. डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, टाइम कैसा यूनिट होती है सेकंड. सो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या बनी, मीटर पर सेकंड. सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड इन विच वी आर गोइंग टू मेजर द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी. इसका डायमेंशन फॉर्मूला पीछे कर ही चुके हैं, दैट इज m0 L1 t minus 1. This is a scalar quantity. What is the meaning of scalar quantity? It means it is only having magnitude but no direction. It is only having magnitude but no direction. डायरेक्शन हमें रिक्वायर्ड नहीं हो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा. इट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि बॉडी कितनी स्पीड से चल रही है. यहाँ कोई मैटर नहीं है कि बॉडी किस डायरेक्शन में चल रही है, सिर्फ हमें क्या चाहिए, उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड चाहिए, but there is no direction required. That is called a scalar quantity. So speed is a scalar quantity. So next is types of speed. What is the next topic? That is types of speed. स्पीड भी अलग अलग टाइप की होती है. उनमें से फर्स्ट टाइप की जो स्पीड आ रही है, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड. That is a uniform speed. Uniform speed is the first type of speed we are going to discuss now. What is the meaning of uniform speed? Meaning of uniform speed is if a body, वैसे तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा. अगर एक बॉडी
इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अगर एक बॉडी चल रही है, मान लो ये ए से गई बी, बी से गई सी और सी से कहाँ गई डी। ए से बी तक 5 मीटर का डिस्टेंस है और 1 सेकंड में से ट्रेवल किया, तो पहले 1 सेकंड में 5 मीटर। नेक्स्ट बी से सी भी 5 मीटर का डिस्टेंस है, अगला 1 सेकंड और लगा इसको। नेक्स्ट 1 सेकंड में भी इसने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। इट मीन्स बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में, एक एक साइड सेकंड के इंटरवल में 5-5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इट मीन्स द स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर हम स्पीड ऑफ द बॉडी अब निकालना चाहें, तो अगर हम स्पीड ऑफ द बॉडी ए टू बी निकालना चाहें, सबसे पहले स्पीड का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाय टाइम। मैं v1 निकाल रहा हूँ, v1 मीन्स डिस्टेंस स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। तो डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, टाइम कितना है 1 सेकेंड। सो व्हाट विल बी स्पीड, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। अगर हम b टू c निकालना चाहें, b टू उसको लिख रहा हूँ, b टू c में डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, टाइम इज अगेन 1 सेकेंड। 5 मीटर इज डिस्टेंस, टाइम अगेन 1 सेकेंड। सो व्हाट विल बी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। And then C to D, distance is again 5 meter, time is 1 second, 5 meter, time 1 second, 5 meter per second. So it means आप क्या देख रहे हो कि A से B में भी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, B से C में भी 5 मीटर पर सेकेंड है, C से D में भी 5 मीटर पर सेकेंड है। इट मीन्स बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, एक स्पीड से ही बॉडी चल रही है। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। और ऐसा कब पॉसिबल है, जब एक बॉडी इक्वल टाइम में, टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हो, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ speed. So what is the second type of speed? Now we are going to do the second type of speed, that is variable speed. That is variable speed. If a body covers unequal distance in equal interval of time, unequal distance in equal interval of time, again we are taking the example of body moving from A to B, B to C and then C to D. A टू B में 5 मीटर है पहले 1 सेकंड में, B से C में 7 मीटर है, टाइम 1 सेकंड ही है, और यहाँ 11 मीटर, टाइम 1 सेकंड ही। ये A और B के बीच का गैप 5 मीटर है, यहाँ B और C के बीच का गैप 7 मीटर है, यहाँ C और D के बीच का गैप 11 मीटर है। सो अगर हम A टू B के बीच में स्पीड कैलकुलेट करना चाहें, सो व्हाट विल बी दिस स्पीड, डिस्टेंस कितना है 5, टाइम इज 1 सेकेंड, so speed is 5 meter per second. B to C में, that is B to C में क्या, डिस्टेंस तो हो गया 7, टाइम 1 सेकेंड, so what will be speed 7 meter per second. so स्पीड चेंज होगी, पहले 1 सेकेंड में कुछ और स्पीड थी, अगले 1 सेकेंड में कुछ और आ गई। इट मीन स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म, स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, स्पीड चेंज हो रही है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। अब देख लेते हैं C to D में भी V3, that is 11 meter upon 1 second, it becomes 11 meter per second. So this is 11 meter per second is the speed of the body from C to D, speed of the body from C to D. Okay, so speed आप देख रहे हो ध्यान से, पहले 5 सेकंड, पहले 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 7 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 11 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ स्पीड एक जैसी नहीं रह रही, हर एक टाइम इंटरवल में चेंज हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब था, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड वेरिएबल स्पीड का मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इट्स वेरिएबल स्पीड। सो दीज आर 2 types of speed. Okay, we have discussed right now. So next 2 types of speeds will be discussed in the next lecture. So do prepare your notes at home, so that you can solve the numericals after completing this chapter. Okay, stay home, stay safe, thanks and have a nice day.